Okay, so till now we have completed module 1 and module 2, and today we will start module number 3. Okay, and in this we will study about inter-process communication, various terminology like what are the different type of process, independent, cooperating, competing, and various others terminology like mutual exclusion and other things which is essential for communication between the process. So we are waiting for students to join. Okay, two of them are joined. Abhishek Kumar and Sikesh Chandra. Okay, okay, Subham is also joining. Good to see them. Okay, student. First of all, good morning to all of you, and please inform your classmates to join the class as it is scheduling. And Simran Kumar is joining. Okay, please inform your classmates to join. Today we will start a new module, which is known as module in your particular syllabus. It is known as module 3, and in this we have to study about how the communication made between the process and what are the various restriction to do that. Okay, so this is the area which we focus. Manisha Kumari is also joining. Okay. Okay. Till now, 5 students have joined. And in the meantime, as you know, that we will, Prem Prakash Gupta is also joining. We will start our session at 8:05. And in the meantime, if you have any kind of query related with previous session, then you can ask. And again, I want to inform you that for the due date of assignment number 2 is very close. So please submit that before the due date. If you will submit it after the due date, it will not be evaluated. And each and every question I gave in that assignment is already solved in our classroom. Ramnath and Shubham Kumar is also joining. Okay. Ritik Roshan is on. Okay. Again, if you have any kind of problem related with previous session, then you can ask your question. Priya Suman is also joining. And the okay, Abhishek Jaiswal and Vikas Manji and Ankit Raj joining. Okay. Till now, 15, 16 of you, Priyanshu Kumar is joining. And I want to inform you also that what we will study today also, and in the future session, the presentation is shared with you. So kindly check that also.
and all the previous presentation is also shared with you in the Google Classroom. Kindly check there also. Okay, till now 18 students have joined. 1 minute left to start the session. Tanushri Sharma is joining and Aditya Kumar is joining. Okay. Rajiv Kumar is joining and Muskan Kumar is joining. Okay, so it is 8:05. So let's start today's session. In the meantime, if your classmates will be going to join, then I will let them. Okay, so let's start. चलिए, तो हमें आज जो स्टडी करना है दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. इसको शॉर्ट में आईपीसी भी कहा जाता है. आई फॉर इंटर, पी फॉर प्रोसेस, सी फॉर कम्युनिकेशन. तो हमें बेसिकली मोहित राज इज ज्वाइनिंग. सो हमें बेसिकली जो चीज पढ़ना है दैट इज रिलेटेड विथ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. और जब अगर दो से ज्यादा प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वी नीड द कंकरेंसी आल्सो, कि कंकरेंटली हम उनको मैनेज कर सकें. ओके, रामकृष्ण इज ज्वाइनिंग. And we need synchronization, that how they can do the process in a synchronized fashion. Shahzad Alam. So this is the glimpse of today's topic. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमें जो हाँ, हम इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि we have various kind of process in our system. अब ये प्रोसेस जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि वी हैव इंडिपेंडेंट प्रोसेस, वी हैव कोऑपरेटिंग प्रोसेस, एंड वी हैव अनदर काइंड ऑफ प्रोसेस विच इज नोन एज कंपीटिंग प्रोसेस. ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस को मैं आपको बता चुका हूं. सो आपको बहुत सारा आइडिया इसके बारे में होगा. आशीष कुमार इज ज्वाइनिंग. ओके, तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है एक बार और देख लेते हैं. टू प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली एंड दे विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट विद द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास दो प्रोसेस हैं या दो से ज्यादा प्रोसेस हैं, तो अगर उनका ऑर्डर हम चेंज करें तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपके आउटपुट को. आउटपुट सेम रहेगा. अगर ऑर्डर ऑफ प्रोसेस चेंज भी हो जाता है तब भी, तो इस सिनेरियो को आपको कहा जाता है कि दे आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस. ये सब प्रोसेस क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट. ये ना तो दूसरे के आउटपुट को इंपैक्ट करते हैं और ना ही फाइनल आउटपुट को इंपैक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. अब ऑर्डर नो स्टेट शेयर्ड विथ अदर प्रोसेस, क्योंकि इनको किसी और की जरूरत नहीं, तो स्टेट शेयर करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट. स्मृति रूपम इज ज्वाइनिंग. ऑर्डर ऑफ शेड्यूलिंग डज नॉट मैटर. जैसा कि मैंने बताया कि P1 पहले हो रहा है या P1 बाद में हो रहा है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है. हमारे शेड्यूलिंग, ऑर्डर ऑफ शेड्यूलिंग से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस. जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑर्डर कुछ भी रख लीजिए, फाइनल आउटपुट सेम ही आएगा. ठीक है, तो इस टाइप का अगर फीचर प्रोसेसेस के पास होता है तो उनको, इस सेट ऑफ प्रोसेस को हम सिंपली क्या कहते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा आता है विच इज नोन एज कोऑपरेटिंग प्रोसेस. तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है
तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, 2 और मोर प्रोसेस आर सेड टू बी, मनीष कुमार इज ज्वाइनिंग, said to be cooperating if they get affected by, okay, they get affected by or affects the execution of other process, affects the execution of other process, वो खुद तो अफेक्ट होते ही हैं और दूसरों को भी अफेक्ट करते. कुमार शब्जीत is joining. Till now 29 students is in the classroom. ओके, सो ये क्या है आपका कोऑपरेटिंग प्रोसेस में, वो अफेक्टेड भी होते हैं, खुद जो प्रोसेस होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं और दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं. तो ये सेट ऑफ प्रोसेस क्या कहलाएगा, दे आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर. ओके, सुमित कुमार इज ज्वाइनिंग. नाउ there are some of the details regarding cooperating process. Cooperating process requires an IPC, inter process communication. इन्हीं को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेट करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर जो डेटा रिक्वायर्ड है किसी से, तो हम क्या करेंगे, उसको मैसेज पास करेंगे या शेयर्ड मेमोरी में हम देखेंगे. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वो डेटा को फेच कर, मतलब फेच जो जिसको नीडेड होता है प्रोसेस को, उसके पास आता है. तो इन दीज सिनेरियो वेयर द प्रोसेस इज कोऑपरेटिंग इन नेचर, देन द आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म मस्ट बी रिक्वायर्ड. IPC that will allow them to exchange data and information via messages, pipes, shared memory, shared variable. Okay, so these are Pappu Prasad is joining. Okay, so these are certain mechanism via which they can share the data or information among them. कैसे कैसे कर सकते हैं, मैसेज पासिंग के थ्रू कर सकते हैं, पाइप्स के थ्रू कर सकते हैं, शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कर सकते हैं और शेयर्ड वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट, अब आपको पता है कि इफ वी आर डूइंग पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो इन दिस केस आपका क्या हो जाता है, आपका सिस्टम का इफिशियंसी इंक्रीज हो जाता है. इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि शेयर रिसोर्सेस स्पीड अप, ये तो स्पीड अप देते ही देते हैं और मॉड्यूलैरिटी भी देते हैं. एक मॉड्यूल की तरह वो काम करते हैं कि इसका वर्क है तो ये मॉड्यूल करेगा, इस प्रिंटर का वर्क है तो प्रिंटर करेगा, पेरिफेरल डिवाइस का है पेरिफेरल डिवाइसेस करेगा. तो इस तरह से क्या होती है, मॉड्यूलैरिटी भी मिलती है, शेयरिंग रिसोर्सेज भी मिलता है, स्पीड अप भी मिलता है. तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस. ओके, so these are certain advantages of cooperating process. Now, तो ये तो हो गया कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बारे में. नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोसेस होते हैं, उनको कहा जाता है कंपीटिंग प्रोसेस. कंपीटिंग प्रोसेस, 2 or more process that are said to be competing. कब competing कहलाएंगे, if and only if they race to, they will race. अब रेस लगी है कि कौन पहले शेयर्ड रिसोर्स को पा सकेगा. तो अगर दे आर रेसिंग टू एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स कंकरेंटली और साइमल्टेनियसली, मतलब प्रोसेस 1 को भी नीड है इस रिसोर्स का, प्रोसेस 2 को भी नीड है, और वो दोनों कंपीट कर रहे हैं कि किसको मिलेगा. और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी विल असाइन अ पर्टिकुलर प्रोसेस टू दैट resource. Okay, so we have 3 types of process. First is known as independent. इंडिपेंडेंट के पास अपना अपना फीचर होता है. फिर आता है कोऑपरेटिंग और लास्ट आता है आपका कंपीटिंग. आपको इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं एंड यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस, आई थिंक सो. कंपीटिंग आपके लिए थोड़ा न्यू है. सो कंपीटिंग आपका वर्ड से ही यहाँ पता चलता है, जो भी होगा वो कंपीट कर रहा होगा. कंपीट कौन करेगा, हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो
प्रोसेस कंपीट करेंगे। अब प्रोसेस किस चीज के लिए कंपीट करेगा? तो वो रिसोर्स के लिए कंपीट करेगा। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, मेमोरी, रजिस्टर, बस, सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रिंटर। ओके, ओके, सुमित इज आस्किंग, सुमित डू यू हैव वॉइस प्रॉब्लम? क्या सबको वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो। No, sir. ओके, एक ही रिस्पांस मिला, बाकी 31 लोग मतलब No, sir. No problem. ओके ठीक है। सुमित आप अपने साइड थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ये वाइवा में पूछा जाता है और आपका एग्जाम वगैरह में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन गेट के बहुत सारे न्यूमेरिकल, आपके जितने टफेस्ट न्यूमेरिकल अगर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, तो वो आईपीसी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आईपीसी मॉडल्स जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप से वर्क करता है। आपका शेयर्ड मेमोरी से वर्क करता है या फिर आपका मैसेज पासिंग से करता है। और जो कम्युनिकेशन होता है मैसेज पासिंग के थ्रू अगर हो रहा है, तो इट कैन बी असिंक्रोनस कम्युनिकेशन और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि आपका एक लेम लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूं तो आपका जो अगर सेंडर है यहाँ पे और एक अगर रिसीवर है यहाँ पे जिसको डेटा इंटेंडेड है भेजने के लिए, तो शिवानी प्रिया इज ज्वाइनिंग लिटिल बिट लेट। ओके, सो सेंडर है, सेंडर और रिसीवर दोनों का क्लॉक मिला हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों का क्लॉक लेमन लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, दोनों का क्लॉक मिला हुआ रहेगा। दे आर सिंक्रोनाइज्ड विथ ईच अदर। ऋषिकेश कुमार एंड ऐश्वर्या कुमारी ज्वाइनिंग। ओके लेट। तो सेंडर और रिसीवर का जो सिंक्रोनस जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो उस केस में दोनों का क्लॉक मिला हुआ रहेगा, या फिर सिंपली कहा जाए दे आर सिंक्रोनाइज्ड इन अ फैशन दैट दे नो दैट विच काइंड ऑफ डेटा इज कमिंग फ्रॉम द सेंडर। ठीक है, सिंक्रोनाइज करने के लिए बहुत टाइम बिट्स। सुएश ए ज्वाइनिंग। ओके, तो उसको जैसे कि आप आगे चल के ये सब नेटवर्किंग वगैरह में पढ़ाया जाता है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूं कि जो आप डेटा भेजते हैं तो वहां क्या होता है, वहां एसएफडी, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ द मैसेज, प्रीएम्बल, ईडी, प्रीएम्बल, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। एसएफडी मतलब स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर का मतलब है कि जब हम पैकेट भेज रहे हैं किसी को, जब हम डेटा भेज रहे हैं किसी को, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे 7 बिट जो होगा वो कंसेक्यूटिव 1010101010 के फैशन में होगा। तो वो क्या करेगा, अपना जो रिसीवर होगा जब उसको 1010 मिलने लगेगा तो उसको पता चल जाएगा कि नया पैकेट आने वाला है, और वो इनको काउंट करके वो पता कर लेगा कि मेरा 7 बाइट का डेटा आने वाला है और अब डेटा आ रहा है, अब लेंथ आ रहा है, अब प्रीएम्बल आ रहा है। प्रीएम्बल 1010 होता है और लास्ट में 11 होता है उसमें। ठीक है, एंड डिलिमिटर आपका 1 बाइट का होता है, इसमें भी डेटा होता है, तो इससे ये पता चलता है कि डेटा फिनिश हो गया। तो दिस इज द टेक्निकल मैं पहले जो बताया था वो था आपका लेमन लैंग्वेज में कि दोनों का क्लॉक मिला हुआ रहता है, सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। ठीक है, और ये हुआ टेक्निकल कि आपका स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर होता है, एंड होता है, प्रीएम्बल होता है, लेंथ ऑफ डेटा होता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन होता है। एंड वाया दीज इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, अब मैनेज करता है कि अब हमारे पास डेटा आ रहा है या लेंथ बताया जा रहा है, ये क्या बताया जा रहा है। और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये इस टाइप की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है कि वहां पे क्या किया जा सके, वहां पे आपको सिंपली डेटा जो होता है सेंडर
डेटा जो होता है सेंडर क्या करता है, सेंडर ने डेटा भेज दिया, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीवर टू गेट दैट डेटा, ठीक है। तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कोई भी मैचिंग का प्रोसेस नहीं किया जाता है कि मैच कर लो कि क्लॉक मेरा मिल गया है, अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब हम ये भेज रहे हैं, अब हम वो भेज रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यहीं पे आपको मैसेज पासिंग का एक और टेक्निक बताया गया है विच इज नोन एज डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब सेंडर आपका रिसीवर को डायरेक्टली डेटा भेजता है, डायरेक्ट ये कम्युनिकेट करता है। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कब होता है, जब सेंडर इंटरमीडिएट नोड्स को क्या करता है, डेटा भेजता है। और ये भी पॉसिबल है कि इंटरमीडिएट नोड फिर किसी इंटरमीडिएट नोड को डेटा पास करे, और फिर इंटरमीडिएट नोड फाइनली क्या करेगा, कोई इंटरमीडिएट नोड रिसीवर को डेटा पास करेगा, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन and this is the case of indirect communication. Am I clear to all of you student? Right now 35 of you are here, kindly respond. Am I clear to all of you about the message passing, synchronous, asynchronous, direct, indirect communication? Kindly respond. Okay, we got some response. Abhishek Jaiswal clear hai, Shubham Simran clear hai, okay, Manisha Kumari, okay, good student. So we are moving forward now. Now let's jump into the concurrency, ठीक है। अब आगे चल के ना आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें कंकरेंसी आपको आएगा, आप आगे चल के डीबीएमएस भी पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसमें भी कंकरेंसी आएगा। कंकरेंसी कहने का मतलब है कि मल्टीपल चीज एक साथ हो रहा है, मल्टीपल चीज एक साथ हो रहा है। जैसे कि मैं बोल भी रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, मैं आपको सुन भी रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चीज एक साथ हो रहा है, तो इसको क्या कहलाएंगे, ये कंकरेंट फैशन में हो रहा है, कंकरेंसी है यहाँ पे, ठीक है। So this is concurrency, that we can do multiple things at the same time. Now jump upon to this. Able to run multiple application at the same time. प्रोसेस 1 भी रन कर रहा है, प्रोसेस 2 भी रन कर रहा है, प्रोसेस 15 भी रन कर रहा है, प्रोसेस 45 भी रन कर रहा है। तो ये क्या होगा, कंकरेंसी। दिस इज द केस ऑफ कंकरेंसी। ओके, मल्टीपल थिंग्स एक साथ हो रहे हैं। अब मल्टीपल थिंग्स एक साथ हो रहे हैं तो आपने सीपीयू शेड्यूलिंग में भी पढ़ा होगा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अलाउज बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्योंकि आपका अगर प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो सीपीयू को यूज करेगा, कोई प्रोसेस को प्रिंटर का रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, प्रिंटर के पास चला जाएगा। किसी प्रोसेस को ह्यूमन का इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट है तो वो ह्यूमन के पास चला जाएगा, गिव मी द इनपुट। किसी को डिस्क का रिक्वायरमेंट है तो वो डिस्क ड्राइव के पास चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेस एक साथ साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन देगा इस केस में। अब बेटर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आई थिंक यू नो अबाउट द रिस्पॉन्स टाइम कि क्या होता है रिस्पॉन्स टाइम। तो अगर हम एवरेज सारे प्रोसेस का अगर हम रिस्पॉन्स टाइम निकाले और उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ प्रोसेस से, तो हमको क्या मिलेगा, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, क्योंकि इंटरैक्टिव होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा राउंड रॉबिन में। राउंड रॉबिन में क्या होता है, एक फेज के बाद प्रोसेस क्या सीपीयू क्या होता है, दूसरे प्रोसेस को दिया जाता है, और ये कहलाता है टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस के विद इन कंप्लीट हो सकता है, इट इज ओके। टाइम स्लाइस
से अगर ज्यादा उसको रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, स्विच होगा दूसरे में, तो बेटर वहां पे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अचीव कर सकते हैं हम बेटर परफॉर्मेंस को। बेटर परफॉर्मेंस इस तरह से अचीव कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, रिसोर्स एक साथ यूटिलाइज हो रहा है, उसमें आपका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा मिल रहा है, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जो यहाँ पे बज़वर्ड आ रहा है which is known as synchronization. Synchronization. Synchronization is use atomic operation to ensure cooperation between process. Synchronization जो होता है ये यूज करता है एटॉमिक ऑपरेशन को, लाइक एटॉमिक ऑपरेशन लाइक की फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अगर एटॉमिक ऑपरेशन है ये, ठीक है, एटॉमिक ऑपरेशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका क्या होगा, अगर अगर आपका प्रोसेस फेच कर रहा होगा तो इट मे पॉसिबल दैट अदर आर डिकोडिंग and it may possible that other are executing at the same time, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ऑपरेशन करने के। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ऑपरेशन को हम एटॉमिक ऑपरेशन में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द सिंक्रोनाइजेशन पर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ठीक है भाई हम सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, सब करेंगे, कोऑपरेटिंग करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? तो चलिए पहले रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कैसे कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहला जो टर्म आ रहा है, टेक्निकल टर्म है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है पहले देख लेते हैं। तो अ प्रोसेस म्यूचुअली एक्सक्लूड इटसेल्फ फ्रॉम कंपटीशन, एक जो प्रोसेस है वो अपने आप को हटा लेगा कंपटीशन से, एंड एग्रीज टू वेट, और वो एग्री करेगा कि हम वेट करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट व्हेनेवर द रिसोर्स इज नॉट फ्री, जब उसके लिए रिसोर्स क्या होगा, फ्री नहीं होगा, तब वो क्या करेगा, अपने आप को हटा लेगा, कंपटीशन से बाहर कर लेगा कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, हम अपने आप को बाहर रखते हैं और हम वेट करेंगे। एनी मैकेनिज्म मस्ट गारंटी, देखिए, एनी मैकेनिज्म मस्ट गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑलवेज, ऑलवेज हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना ही चाहिए, इवन वी आर डूइंग द आईपीसी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, किसी के पास रिसोर्स नहीं है तो वो वेट करेगा, सिंपल, ठीक है, वो अपने आप को कंपटीशन से बाहर रखेगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कहता है, इनिशियली रिसोर्स मस्ट बी फ्री, जब हम पहली बार सिस्टम में आते हैं ठीक है, सिस्टम अभी आपका ओपन हुआ, अभी कुछ प्रोसेस रन करना स्टार्ट किए हैं, तो उस समय रिसोर्स जो भी होंगे, चाहे सीपीयू होगा, चाहे वो पेरिफेरल डिवाइस होगा, चाहे वो आपका प्रिंटर होगा, चाहे आपका रजिस्टर्स होगा, चाहे आपका बस होगा, कुछ भी, वो सब फ्री होने चाहिए, सारे रिसोर्स मस्ट बी फ्री, सो दैट फर्स्ट प्रोसेस कैन प्रोग्रेस, सो दैट फर्स्ट प्रोसेस कैन प्रोग्रेस। शुरू में सब कुछ फ्री, ताकि पहला जो प्रोसेस आए वो आसानी से प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रोग्रेस का ये पार्ट बहुत टिपिकल है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिलीज ऑफ लॉक्स,
मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है ना, आईपीसी वगैरह या सिंक्रोनाइजेशन वगैरह जब हम करते हैं तो हम लॉक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे आप घर में क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं ना, तो उसी टाइप से लॉक मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, लॉक मैकेनिज्म का यूज किया जाता है कि ये लॉक है। तो आपका जैसे ही मैं अब क्या हुआ, मैं अब किसी रिसोर्स को यूज कर रहा हूं, तो उस रिसोर्स को मैं लॉक कर लूंगा ताकि कोई दूसरा इसको यूज ना कर सके। और जब मैं रिसोर्स को यूज कर लिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, उस रिसोर्स को क्या करूंगा, अनलॉक करूंगा ताकि जो दूसरे हैं उसको यूज कर सके। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। रिलीज ऑफ लॉक should make one of the waiting process to access the resource। जैसे ही हम लॉक को रिलीज करेंगे, कोई दूसरा प्रोसेस जो वेटिंग स्टेट में था ना, जो वेटिंग स्टेट में था, वो उसको यूटिलाइज करेगा रिसोर्स को। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत छोटा में लिखा हुआ है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन टिल यू विल अंडरस्टैंड इट। तो आपका प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाता है। आपका नेक्स्ट आपका आता है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट मतलब बाउंड वेटिंग हम कितना देर करेंगे, ये हमेशा बाउंडेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम इन्फिनाइट टाइम के लिए वेटिंग करते रह रहे हैं। ठीक है, हमेशा लिमिट होना चाहिए कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट कितने देर वेट करूंगा, ये बाउंडेड होना चाहिए। तो यही कहलाता है बाउंडेड वेट में ड्यू टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब चूंकि आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है कि एग्रीज टू वेट। तो ड्यू टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस मस्ट बी डेफिनिट। ठीक है, अब चूंकि वो एग्री किया कि मैं वेट करूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको इन्फिनाइट टाइम के लिए आप बोल दिए कि तुम वेट ही करते रहो, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या होगा, डेफिनेट वैल्यू होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। तो दिस इज अचीव बाय राइटिंग रिलीज ऑफ लॉक, जो अभी मैंने लॉक मैकेनिज्म आपको बताया, रिलीज ऑफ लॉक। अमन कुमार सिंह इज ज्वाइनिंग वेरी लेट, 8:31 में ये ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, इज ज्वाइनिंग, ओके, लेट हिम ज्वाइन। पता नहीं ज्वाइन हुआ कि नहीं। ओके, इफ Aman Kumar, why you joined so late? Do you have any reason to join the class so late? यही में, इसी में रिदम टूट जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ 8-10 तक आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, बट कितना भी बोलो आप लोग को समझ में आ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसके लिए भी कि मैं आपको उसके बाद 8-10 के बाद ज्वाइन ही नहीं करवाऊँ। ठीक है, अब जो ये बाउंडेड वेट होता है, दिस इज अचीव्ड बाय राइटिंग रिलीज ऑफ लॉक विदाउट फॉरगेटिंग। ऐसा ना हो कि मैंने रिसोर्स को लॉक कर दिया, मैं रिसोर्स को यूज कर लिया, मैं सिस्टम से बाहर चला गया, तो ये क्या रहेगा, ये तो रिसोर्स हमेशा लॉक स्टेट में ही रहेगा। तो हमेशा जब भी कोई आपका प्रोसेस है, अगर वो लॉक कर रहा है ना, तो उसको अनलॉक, जब उसका काम खत्म हो जाएगा, तो वो जब एग्जिट स्टेट से पहले वो क्या करेगा, रिसोर्स को अनलॉक भी करेगा। ठीक है, तभी आपका जो प्रोसेस होगा उसका वेट होगा बाउंडेड। तो दिस आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज आपके सिस्टम में होगी, तभी आपके प्रोसेस क्या होंगे, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क कर सकेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकेंगे। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर लॉक अनलॉक का भी ड्यूरेशन होता है? यस, सर लॉक करने और अनलॉक करने का भी ड्यूरेशन होता है बीच में, मतलब कितने देर के लिए लॉक करेगा? कहा जाए तो ऐसे तो देर इज अ सर्टेन, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। लॉक लॉक बेसिकली क्या है, उसमें एक क्या कहा जाए, एक कोड इस टाइप का लिखा हुआ होगा, कोड होगा जिससे कि वो क्या कर सके, कोई दूसरा प्रोसेस उसको एक्सेस ना कर सके। एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपका जब सिस्टम में, यस देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि कौन कितने बार आपका लॉक कर रहा है या अनलॉक कर रहा है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट दैट, ठीक है। और लेकिन अगर जब तक प्रोसेस को नीड होगा रिसोर्स का, तब तक वो लॉक करके रखेगा, और जैसे ही उसका नीड खत्म होगा तो वो क्या होगा, वो बाहर की ओर चला जाएगा, और बाहर जाने से पहले वो अनलॉक करेगा। और अगर आप पूछना चाहते हैं लॉक, कि लॉक के लिए भी क्या कोई टाइम होता है, तो जैसे कि आपका सिंपल किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है, उसी तरह से लॉक वगैरह, क्योंकि लॉक इज आल्सो इंस्ट्रक्शन। जैसे कि इफ टर्न नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीजें आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको और डेप्थ में पता चलेगा। टिल नाउ जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दिया कि इस टाइप से लॉक करते हैं, इस टाइप से अनलॉक किया जाता है। जब भी आपको शेयर्ड रिसोर्स को यूज करना है तो आप लॉक कीजिए, पहले यूटिलाइज कीजिए, निकलने से पहले लॉक को रिलीज कीजिए, और दूसरे प्रोसेस को मौका दीजिए कि वो जो वेटिंग स्टेट में है वो रन कर सके। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। Am I clear to you? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। क्या क्या कंडीशन होने चाहिए अगर हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन आता है क्रिटिकल सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वाइवा वगैरह में ये सब पूछ दिए जाते हैं, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है बताइए, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, कुछ विशेष नहीं होता है, दैट पोर्शन ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट, ये वो पोर्शन है प्रोग्राम टेक्स्ट का वेयर शेयर्ड रिसोर्सेस आर एसेस्ड। वो पोर्शन है, क्योंकि प्रोग्राम होगा तो उसमें क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा ना, टेक्स्ट के अलावा और क्या होगा। तो वो टेक्स्ट का पोर्शन है जहां पे कि शेयर्ड रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं आप, शेयर्ड रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। शेयर्ड रिसोर्स मैंने पहले ही बता चुका है कि ये आपका किसी भी टाइप का रिसोर्स हो सकता है कोई फाइल हो सकता है कि कोई वेरिएबल हो सकता है कि आपका कोई डिवाइस हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है कि आपका प्रिंटर हो सकता है कि आपका सीपीयू, ठीक है। जहां भी आप शेयर्ड रिसोर्स को, जिसको शेयर किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट हैव द क्रिटिकल सेक्शन कॉन्सेप्ट। और क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का टेक्स्ट का वो पार्ट होता है जहां पे कि हम शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम होगा, टेक्स्ट है टेक्स्ट है टेक्स्ट है। अब जहां शेयर्ड रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहेंगे उसको हम सिंपली लिखेंगे कि CS, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन, इसके बाद भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, शेयर्ड रिसोर्स, याद रखिएगा, प्रोग्राम का टेक्स्ट का वो पार्ट जहां पे कि शेयर्ड रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं हम, तो वो कहलाता है आपका क्रिटिकल सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन है आपका रेस कंडीशन। रेस करते हैं, प्रोसेसेस मस्ट बी रेसिंग concurrently to assess the critical section।
मैं पहले, मुझे नीड है, लाइक दिस। तो ये नहीं कि प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस हैं हमारे सिस्टम में, और अभी किसी ने रिसोर्स को, शेयर्ड रिसोर्स को यूज किया तो बाकी सब सो गए हैं इंडिफिनिटली। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो प्रोसेस बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से, तो कोई ना कोई प्रोसेस जो वेट कर रहा होगा वो अंदर की हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, ये नहीं कि सब सो गए, आराम से सोए हुए हैं, और क्या हो कि कोई पूरा का पूरा शेयर्ड रिसोर्स खाली है और कोई उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है। ओके, वी गॉट सम रिस्पॉन्स बाय द चैट बॉक्स। सर पप्पू प्रसाद का लिखना है कि सर असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या? नंबर और ईयर लिख के बना सकते हैं क्या? नहीं, you must have to, I gave this instruction that you must have to write the question also. आपका क्वेश्चन होगा फिर सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन होगा फिर सॉल्यूशन होगा। गेट इट? ओके, गुड। मैं सारी इंस्ट्रक्शन आपको जो भी होता है मैं पहले ही प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया रेस कंडीशन। तो पहला हो गया क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ शेयर्ड रिसोर्स का यूज हो रहा है। नेक्स्ट होगा रेस कंडीशन। रेस कंडीशन ये कहता है कि जो भी कंकरेंटली एक्सेस करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, रेस करेंगे, ताकि हम क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट है आपका प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन आप जानते हैं, बहुत बार हम इस को सुन चुके हैं। तो प्रीएम्पशन क्या होता है? running process can be preempted after completion of few instruction only in user mode. I think सभी को पता होगा यूजर मोड क्या होता है, और इसी मोड में आप प्रीएम्पशन कर भी सकते हैं। तो प्रीएम्पशन क्या कहता है? प्रीएम्पशन ये कहता है कि जो आपका रनिंग प्रोसेस है उसको आप प्रिम्प्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फ्यू इंस्ट्रक्शन। जैसे वो फेच कर लिया, डिकोड कर लिया, या कुछ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 को रन किया, अभी उसको और इंस्ट्रक्शन रन करना है। लेकिन अगर उससे कोई हाई प्रायोरिटी या किसी का कंडीशन मेट कर गया कि वो अब रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहता है, तो वहां पे क्या होगा कि उसको आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन से फोर्सफुली हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को, आई थिंक स्टूडेंट यू नो अबाउट दिस, दैट दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रीएम्पशन। ओके, सभी को समझ में आया? Okay, now student, it is time for attendance. I am giving you link for today's attendance. Kindly fill it up. And again, I am telling you, please do not share this link anywhere else. It will be unfair for them who जो सुबह सुबह उठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, और जो लोग आराम से सोए रहते हैं, लिंक का वेट करते रहते हैं, उनको लिंक मिल जाता है और वो भी अटेंडेंस फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज अनफेयर टू यू हु आर अटेंडिंग क्लासेस ऑन टाइम। बाकी दोस्ती निभानी है या और कुछ निभाना है तो वो तो अपनी जगह है, वो आप निभा सकते हैं, बट इस तरह से मत निभाइए। अगर आपने अटेंडेंस दे दिया है तो प्लीज रिस्पॉन्ड दैट यू हैव गिवन द अटेंडेंस बाय द चैट बॉक्स। ओके, शुभम डन, अभिषेक डन, सुमित डन, आशीष डन, तनुश्री, रामनाथ, ऐश्वर्य, मनीष, मनीषा कुमारी, विपिन कुमार डन डन डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव सो मच, 17 मिनट है, तो डोंट वेस्ट द टाइम। तो
I think it is very clear to you what are the necessary. मैं बहुत स्मूथ जा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए. अगर आपको कहीं भी डाउट है, डन ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स. तो अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग थ्रू. नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम सिंक्रोनाइजेशन तो कर रहे हैं लेकिन अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा. प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा उसको भी जानते हैं. तो लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी. मतलब कि अगर फाइनल डेटा x का 15 होना चाहिए था तो हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलकर के इसका डेटा 20 मिल रहा है. तो इसको क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंसी. रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है, हमें रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है, तो दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंसी. सिंक्रोनाइजेशन को अगर सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो इनकंसिस्टेंसी हो सकता है. नेक्स्ट हो सकता है लॉस ऑफ डेटा. पूरा का पूरा हमने जो डेटा दिया वही का क्या हो गया, लॉस हो गया, खत्म हो गया, वैनिश हो गया. तो लॉस ऑफ डेटा भी हो सकता है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन से. नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, एंड दिस इज आल्सो इफेक्ट ऑफ बैड सिंक्रोनाइजेशन विच इज नोन एज डेडलॉक. डेडलॉक कहने का मतलब है कि अगर ये भी केस हो सकता है कि आपका दो या दो से अधिक प्रोसेस क्या हो जाए, इस टाइप से फंस जाए, स्टक हो जाए अपने सिस्टम में कि वो आगे प्रोसेस कर ही नहीं सकते हैं. मतलब कि मैं प्रीवियस भी आपको डेडलॉक बता चुका हूं, ग्लिम्स मैंने दिया था, डिटेल में हम लोग मॉड्यूल 4 में जानेंगे. बट मैं ये बता दूं कि डेडलॉक वो सिनेरियो है जहां पे कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस जब प्रोसेसिंग करना तो चाहते हैं लेकिन वो इनडेफिनेटली ड्यू टू सर्टेन कंडीशन वो क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए P1 है, P1 के पास रिसोर्स 1 है और वो रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है, उसको रिसोर्स 2 चाहिए. और P2 है, P2 के पास रिसोर्स 2 है और P2 को रिसोर्स 1 चाहिए. तो क्या होगा, इस केस में दोनों रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस ही है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, P1 के पास R1 होगा और P2 के पास R2 होगा. और P1 को R2 चाहिए होगा और P1 को R1 चाहिए होगा. तो ना तो R1 फ्री है ना तो R2 फ्री है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों फंस गए बेचारे. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका एक ब्रिज है और उस पे 2 पर्सन या 2 व्हीकल पास करना चाह रहे हैं और एक ब्रिज है, वन वे ही है. अब क्या है कि उस केस में दोनों ही सामने सामने आ गए ब्रिज के बीच में. अब दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो बेटर अप्रोच क्या होगा, किसी को एक को पीछे हटना पड़ेगा. तो जो फंस गए तो कहलाया ये कि डेडलॉक हो गया. डेडलॉक हो गया. ओके, सो अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन सही तरीके से नहीं इंप्लीमेंट होगा तो दिस इज द केस, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका लॉकिंग मैकेनिज्म क्या क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं. लॉकिंग मैकेनिज्म इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है. तो लॉकिंग मैकेनिज्म में क्या क्या आता है, टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन. मतलब आप टेस्ट कीजिए कि लॉक अभी आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो सेट कर दीजिए उसको, ठीक है. तो दिस इज द टेस्ट एंड सेट. बिजी वेटिंग भी आता है. बिजी वेटिंग इट मींस कि अगर ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो लॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर में आता है. बिजी वेटिंग कहने का ये मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके से समझते हैं कि बिजी वेटिंग क्या होता है.
बिजी वेटिंग ये है कि अगर आप जैसे एक मॉल में गए तो अब आपने कोई ड्रेस परचेस किया, अब आप उसको चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट इज फिटिंग और नॉट, कि कलर मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उसको क्या करना चाहते हैं, ट्रायल करना चाहते हैं। अब ट्रायल करने के लिए जा रहे हैं आप, लेकिन आपके पास वहां जो मॉल है वहां पे लिमिटेड ट्रायल रूम है, ये ट्रायल रूम नंबर 1 है, ये ट्रायल नंबर 2 है, ट्रायल रूम नंबर 2 है। तो जो मान ले जाए यहाँ पे क्या है कि कुछ पर्सन पहले से खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई यूटिलाइज कर रहा है इसको, यहाँ भी यही सिनेरियो, तो आप भी आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पीछे लाइन में लग जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यू आर वेटिंग एंड यू आर बिजी ऑल्सो, कि ये आप बार बार चेक करते रहते हैं खाली हुआ कि नहीं हुआ, खाली हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या सिनेरियो है, दिस इज बिजी वेटिंग, दैट यू आर इन द लाइन एंड चेकिंग दैट कि ये ट्रायल रूम खाली है कि नहीं है। तो उसी टाइप से सिस्टम में भी होता है कि अगर प्रोसेस है, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, यूज कर रहा है उसको, तो क्या है, दूसरा प्रोसेस चेक कर रहा है कि वो खाली हुआ है कि नहीं हुआ, खाली हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है विच इज स्पिन लॉक। स्पिन लॉक क्या कहता है कि अब आपका जो लॉक है उसको आप बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वेस्टेज होगा, क्योंकि लॉक अगर लगा हुआ है तो हमें क्या है कि ऐसा पता चलना चाहिए कि लॉक अब खाली हो चुका है, मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आई एम वेटिंग, आई विल वेट, मैं आराम से यहाँ जो सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं उस पर आराम से बैठा हुआ हूँ, जैसे वो यहाँ से निकले मुझे बार बार चेक ना करना पड़े, जैसे ये खाली हो जाए मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए कि यस इट इज वेकेंट, नाउ आई कैन यूटिलाइज दैट, ठीक है। तो स्पिन लॉक बेसिकली क्या है, ये भी एक लॉक है जहां पे क्या, ये लॉक लग गया, अब क्या हो रहा है, मैं बार बार चेक कर रहा हूँ ड्यू टू बिजी वेटिंग, तो इससे क्या हो जाएगा, इट इज अ वेस्टेज ऑफ साइकिल, so it is not a fruitful scenario also. So these are some of the locking mechanism and terms related with that. Okay, now it is 8:51. Now tell me student, do you have any kind of problem related with session which we have completed today? Yes, right now 31 students are here. Kindly respond, do you have any kind of problem? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। नो प्रॉब्लम मनीषा कुमारी, सिमरन कुमारी, शुभम, नो सर नो प्रॉब्लम, ओके ओके। सो पीयूष, मनीष, टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन once again. Okay, Sumit has asked, Smriti Rupam has asked spin lock once again. Okay. टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन क्या हुआ ना, जनरली इस टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि आप टेस्ट करते हैं कि वेदर आई कैन यूटिलाइज द क्रिटिकल सेक्शन और नॉट। इफ द क्रिटिकल सेक्शन विल बी फ्री देन क्या होगा कि हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो टेस्ट किया, एक टेस्ट ऑपरेशन हो गया और एक हो गया सेट ऑपरेशन कि नाउ यू कैन यूज द क्रिटिकल सेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट एंड सेट। ये एक लॉक करने का तरीका है, और लॉक करने के तरीके में ही एक और आता है आपका बिजी वेट। बिजी वेटिंग में बिजी वेटिंग आई थिंक किसी ने पूछा नहीं, चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। बिजी वेटिंग में क्या होता है कि आपका रिसोर्स जो है शेयर्ड रिसोर्स, तो शेयर्ड रिसोर्स है तो क्रिटिकल सेक्शन में होगा, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में कोई उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हर एक साइकिल के बाद क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या लॉक खाली हुआ, क्या लॉक ओपन हुआ, क्या लॉक ओपन हुआ। तो ये क्या हो गया, आप बिजी वेट है, आप वेटिंग भी कर रहे हैं और बिजी भी हैं चेक करने में कि क्या लॉक ओपन हुआ, क्या लॉक ओपन हुआ। तो इट इज नॉट अ फ्रूटफुल सिनेरियो। तो यही कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका स्पिन लॉक में। स्पिन लॉक क्या कहता है कि स्पिन लॉक ये कहता है कि आप कॉन्स्टेंटली
जो चेक कर रहे हैं, इट इज अ वेस्टेज, इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टेज। क्योंकि आप क्या करें, आप उस जो क्लॉक साइकिल आपको मिल रहा है, उस क्लॉक साइकिल में आप बार बार एक ही काम स्पिन कर रहे हैं। एक ही काम के लिए क्या हो रहे हैं, यू आर स्पिनिंग, कि खाली हुआ कि नहीं हुआ, खाली हुआ कि नहीं हुआ। तो देयर मस्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद स्पिन लॉक। डेडलॉक होता है, स्पिन लॉक होता है, ठीक है। स्पिन लॉक इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइव लॉक। ये लाइव तो है, बट वो क्या कर रहा है, वो हर बार जो वेस्टेज हो रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टेज। ये वेस्टेज है लॉक का, कि आप क्या करें, बार बार उसको चेक करें। तो देयर मस्ट बी अ केस, देयर मस्ट बी अ केस दैट when the system which is using the shared resources or process which is using the shared resources, वो जब भी आपका क्या होगा, एग्जिट करेगा, तो एग्जिट करने के पहले वो क्या करेगा, लॉक को रिलीज करेगा, और जो वेट कर रहे होंगे, जो वेट करेंगे, उनमें किसी को इन्वोक करेगा कि नाउ यू कैन यूटिलाइज द सिस्टम। वो उनमें किसी को पास ऑन करेगा कि नाउ यू यूटिलाइज द सिस्टम। ओके, तो दिस इज द केस। जिन्होंने भी पूछा था क्वेश्चन, आई थिंक एक तो स्मृति रूपम ने पूछा था, और एक यस स्मृति रूपम, स्पिन लॉक समझ में आया। एंड सुमित कुमार ने पूछा था टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन। ओके, वेरी गुड। सो नाउ I am ending today's session right here, right now. Thank you, student, for joining. Have a nice day.